Good morning students, myself Sanjay Kumar Gupta, maths and science teacher in St. Michael's Academy, Bethiya. Students, in this video, I shall teach science of class 7, chapter 5, transfer of heat. In previous video, we have read about flow of heat and conduction. Now in this video we shall try to understand convection and its application in our nature. Students, as you know that convection occurs in liquids and gases. This is the mode of transfer of heat in which hot particles of molecules of liquid and gases expand and they create low pressure area, while the cold air and the cold molecules of liquid just they come to that low pressure area as they are creating higher pressure area, and due to this circular movement they produce a conventional current, as we find example of convention in our home when we boil water. About it I discussed in first video. So here we are going to try to understand the conventional current and convention by a small practical. Students, now I am trying to create convention current. To show it, just you can see there is a pot which is filled with ice cold water and representing atmosphere. Now I put 2 drops on 2 ends with blue ink that represent cold air, and there is red color which represents warm air. You can see that air is just spreading, but what happens when the air becomes warmer? Now this is warm air, and just see what happens when the atmosphere will hot. Students, you can see that when the air becomes more hotter, it rises in both sides and the blue color start spreading and mixing with it. Now students, आप देख सकते हो कि कैसे यह ब्लू कलर रेड कलर के साथ मिक्स हो रहा है. Now this is the example of convention
करंट अब धीरे धीरे यह रेड कलर गर्म होकर ऊपर की तरफ फैलेगा और फिर वह ठंडी हवाओं के साथ मिलकर एक संवहन की धाराएं पैदा करेगा। और यहाँ जैसा कि आप इस प्रयोग में देख रहे हो कि कैसे ठंडी हवाएं गर्म हवाओं के साथ आकर मिल रही हैं। Now it's very easier to understand how the conventional current appear. Now students, it's time to read books and to get more knowledge about convention. So let's start reading book and growing our knowledge. Convection. This mode of transfer of heat takes place in liquids and gases. When a liquid or a gas is heated, its particles near the source of heat gets heated and move upward. The space left by them is quickly filled by the colder particles फ्रॉम दिस सराउंडिंग। चूंकि जब भी लिक्विड या गैस गर्म होकर ऊपर उठते हैं तो उस स्थान पर जो गर्मी वाले स्रोत के काफी नजदीक के पार्टिकल्स होते हैं वह ऊपर उठते हैं और उस स्थान को भरने के लिए ठंडी हवाएं या ठंडे लिक्विड्स या गैस के पार्टिकल तुरंत चले आते हैं क्योंकि वे भारी होते हैं। नाउ दिस पार्टिकल गेट हीटेड एंड राइज अपवर्ड, और फिर यह भी गर्म होकर ऊपर की ओर उठते हैं। द प्रोसेस कंटिन्यूज एंड ग्रेजुअली मोर एंड मोर पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एंड गैस कीप ऑन गेटिंग हीटेड। इन दिस प्रोसेस ऑफ convection, the heat gets transferred onto a substance by the actual movement of the heated particles within the substance. चूंकि इस प्रक्रिया में ऊष्मा उस पदार्थ का जो ट्रांसफर करती है, जो उसमें स्थानांतरण होता है, वह उनके गर्म कणों के एक गति के कारण संभव हो पाता है। स्टूडेंट्स, हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि 10 स्टूडेंट एक लाइन में खड़े हैं और एक व्यक्ति उनको टॉफ़ी बांटना चाहता हो और यह चाहे कि वह अपने स्थान से अलग नहीं हो तो वह क्या करेगा? बहुत आसान सा इसका उत्तर होगा कि वह व्यक्ति पहले लड़के को टॉफ़ी दे देगा और पहला लड़का वह 10वें लड़के के स्थान पर चला जाएगा। फिर क्या होगा? जो सेकंड में लड़का खड़ा होगा वह पहले वाले के स्थान पर आएगा, फिर उसको भी टॉफ़ी मिलेगा और वह अब सबसे पीछे चला जाएगा। फिर तीसरा लड़का वह अब पहले स्थान पर आएगा और उसको भी टॉफ़ी मिलने के बाद वह भी अपने प्लेस को चेंज करके लास्ट प्लेस में जाएगा। और इस तरह से एक समय आएगा जब वह बच्चा जो 10वें स्थान पर खड़ा था वह पहले स्थान पर होगा और फिर जो बच्चा पहले स्थान से 10वें स्थान पर गया था वह पुनः उसके पीछे खड़ा मिलेगा। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि बच्चों ने अपने स्थान को खुद परिवर्तित किया और सब ने टॉफ़ी को प्राप्त किया। ठीक यही स्थिति उस मॉलिक्यूल्स की होती है जो किसी ऊष्मा के स्रोत के बहुत करीब होते हैं और जब ये उस ऊष्मा को प्राप्त करते हैं तो वहाँ से वह अपने स्थान को बदल देते हैं और उस ठंडे प्लेस में चले जाते हैं और फिर उसके बगल वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं वह तुरंत उस स्थान को भरने के लिए चले आते हैं और इस तरह से एक सर्कुलर एरिया तैयार होता है
जिसको हम कन्वेंशन करंट के नाम से जानेंगे, या उसको हम हिंदी में संवहन धाराएं भी कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ कन्वेंशन करंट। चूंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या आप देख रहे हो, यहाँ आप देख रहे हो कि जो भी परिवर्तन हो रहा है वह इसलिए क्योंकि उन अणुओं के तापमान में एक अंतर आ रहा है, और इस अंतर के कारण ही एक गति प्राप्त हो रही है। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड अ फ्लूइड, सिंस गैसेस एंड लिक्विड्स बोथ कैन फ्लो, so they are known as fluid. Students, here is an activity given that a flask has been kept on a tripod and the flask is half filled with water and it is being by spirit lamp. Now you can see the conventional current which is appearing in the flask. Convection cannot take place in solids because their particles are fixed in the respective place and are not free to move within the substance. In the above activity, you must have noticed that the mustard seeds at the center of the flask near the flame rose upward till the upper layer of water and then fell downwards from the sides of the flask. जैसा कि ऊपर के एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि हम एक फ्लास्क में क्या करते हैं, थोड़ा पानी भरते हैं, फिर उसमें सरसों के बीज डालते हैं और नीचे स्पिरिट लैंप से उसको गर्म करते हैं। जब पानी गर्म होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऊपर की ओर उठना शुरू होते हैं। उसके साथ ही उस सरसों के बीज भी उठना शुरू करते हैं और इस तरह से वह उस फ्लास्क के साइड से फैलना शुरू करते हैं और इस तरह से एक सर्कुलर मूवमेंट का निर्माण करते हैं, जो ये दिखाते हैं कि यहाँ संवहन धाराएं हो रही हैं। They actually rose with the heated particle of water and fell down along with the colder particles at the side of the flask. This is how convection currents are formed in a fluid when it is heated from one end. Now, there is another activity has been given which will show how the hot air rises up. As in this activity, it will be taken a circular piece of paper of about 5 inch in diameter and cut it along the dotted line as shown in the figure. You will obtain a spiral mode out of a paper. If you hold it at the center where A is written, light a candle and hold the spiral above the frame of the candle. See the spiral rising up on its own. This is because of invisible hot air rising upward above the flame. चूंकि उस कैंडल के फ्लेम के आसपास का एयर गर्म है और यह गर्म होकर ऊपर उठ रहा है, जिसके कारण यह जो स्पाइरल पेपर कटिंग है वह मूव कर रहा है। कन्वेक्शन करेंट्स वर्किंग इन नेचर। कन्वेक्शन करेंट्स टेक प्लेस इन एयर एंड ओशियन वाटर रिजल्टिंग इन अ नंबर ऑफ नेचुरल phenomena. Some of them are explained below as sea breeze. During the daytime, the land regions absorb more heat than ocean water, making the land hotter. चूंकि आपको पता है कि पानी देर से गर्म होता है और देर से
ठंडा होता है। दिस इज द रीजन ओशियंस वाटर heated after a long time while land heats earlier than the sea water, and so the air above the land also becomes hotter than the air above the oceans. The hot air from the land rises up and the colder air from the oceans rushes towards the land to occupy the space left by the hot air. The convection current from the ocean to the land causes sea breeze. As you are looking in the picture, that the warmer air which is arising from land areas towards cold area filled with सी वाटर। तो जैसे ही यह लैंड के एयर अपने स्थान को छोड़ते हैं, वह स्थान खाली हो जाता है और उसको भरने के लिए समुद्र की ठंडी हवाएं चली आती हैं, एंड देन इट प्रोड्यूस मीन्स कन्वेंशनल करेंट, और इसको हम संवहन धाराएं कहते हैं, और एक संवहन धारा वहाँ प्रारंभ हो जाती है। सिंस the air arising from sea, it is called sea breeze. So sea breeze produced during daytime. Land breeze during the night time, the land regions lose heat faster than ocean water. The air above the ocean is warmer than that above the लैंड। चूंकि शाम तक क्या होता है कि जो धरती होती है वह सूर्यास्त होते ही तुरंत ठंडी हो जाती है, बट समुद्र या महासागरों के धाराएं होती हैं वह धीरे धीरे अपने गर्मी को छोड़ते हैं। वैसी स्थिति में क्या होता है कि जो हवाएं समुद्री पानी के नज़दीक होते हैं वह गर्म होते हैं, और यह गर्म होकर ऊपर की ओर उठना शुरू करते हैं। फिर ये गर्म होकर लैंड एरिया की तरफ आते हैं जहाँ के एयर पहले से ठंडे होते हैं, और फिर यह ठंडी धाराएं स्थल मार्ग से सीधे कहाँ चले जाते हैं, उस समुद्री धाराओं की ओर जाते हैं, और फिर वहाँ भी ठीक उसी तरह से एक कन्वेंशन करंट या संवहन धाराओं का चालन शुरू हो जाता है। The colder air from the land rushes towards the ocean to occupy the space created. The convection current from the land to ocean causes land breeze. चूँकि जाहिर सी बात है कि ये धाराएं हमारे धरती से होकर जा रही हैं, लैंड एरिया से होकर जा रही हैं, इसलिए हम इनको लैंड ब्रिज भी कहेंगे। Earthquakes. You know that the core of the earth is very very hot, nearly 6000 degrees Celsius. Between the earth crust and core, the rock and other material exist in their molten state and are called the magma. Because a large temperature difference between the earth's crust and the core, huge convection currents are set in the magma. चूंकि पृथ्वी के अंदर कोर में बहुत ही गर्मी है, यहाँ का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, और फिर ऊपर यानी क्रस्ट पर तापमान उससे बहुत कम है। वैसी स्थिति में क्या होता है, नीचे कोर की गर्म हवाएं ऊपर की ओर आती हैं और वह हमारे क्रस्ट की ठंडी हवाओं से जुड़ती हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ भी जैसे ही वह स्थान खाली होता है, तुरंत क्रस्ट से ठंडी हवाएं वहाँ जाना शुरू होती हैं। The movement of the molten magma due to convection under the earth's crust results in an immense pressure under the land mass. चूंकि नीचे कोर में गर्म मैग्मा मिलते हैं, बहुत अधिक वेग के साथ वह मैग्मा ऊपर की ओर
आते हैं और इस तरह से वहाँ चूंकि एक कन्वेक्शन करंट पैदा होता है और यह एक उच्च प्रेशर डालते हुए ऊपर की तरफ आ जाते हैं। समटाइम्स व्हेन द प्रेशर बिकम्स अनबियरेबल सम पार्ट्स ऑफ द लैंड masses स्लाइड पास्ट ईच अदर कॉजिंग अर्थक्वेक। चूंकि कभी कभी क्या होता है, जब यह दबाव असहनीय हो जाता है तो क्रस्ट के कुछ हिस्से एक दूसरे पर फिसलने लगते हैं और इस फिसलन के कारण ही अर्थक्वेक या भूकंप का निर्माण हो जाता है। ओशियन करेंट्स। द ओशियन करेंट्स नियर द इक्वेटर ऑफ द अर्थ गेट्स हीटेड बाय द सन डायरेक्टली, whereas the ocean water near the poles is colder. Due to this temperature difference, the ocean water at the surface of ocean moves from the equatorial region to the polar region, while below the surface the water in the ocean moves from the polar region to equatorial region. क्योंकि आप ग्लोब देखते हो, उसमें क्या होता है कि बीच में जो स्थान होता है ठीक बीचों बीच वो इक्वेटर कहलाता है और इक्वेटर सबसे गर्म होता है बिकॉज इट इज जस्ट फेसिंग द सन ऑल द टाइम। चूंकि यहाँ सूर्य की गर्मी हमेशा मिलती रहती है इसलिए यह सबसे गर्म क्षेत्र होता है। वाइल द पोलर रीजन्स आर कवर्ड विद आइस कैप्स बिकॉज दे आर फार फ्रॉम द सन। और यहाँ सूर्य की गर्मी बहुत कम पहुँचने के कारण हमेशा बर्फ ढका रहता है। जाहिर सी बात है कि पोलर रीजन्स में क्या होंगे कि वहाँ के जो एयर होंगे वह काफ़ी ठंडे होंगे, वहाँ एयर का प्रेशर भी अधिक होता है, जबकि इक्वेटर के करीब की हवाएं वह गर्म होती हैं और यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ गर्म हवाएं जो होती है इक्वेटर की वह निकल कर पोलर रीजन की तरफ जाती हैं और पोलर रीजन से ठंडी हवाएं निकलकर उस इक्वेटोरियल या विषुवतीय क्षेत्र में चली आती हैं, जिसके कारण एक संवहन की प्रक्रिया शुरू होती है। दीज कन्वेक्शन करेंट्स इन द ओशियन वाटर कॉज द ओशन करेंट। चूंकि जब यह संवहन की धाराएं समुद्री जलों से गुजरती हैं तो वहाँ भी एक समुद्री धाराओं का निर्माण हो जाता है। द ओशियन करेंट्स आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द ओशियन। चूँकि इसके कारण क्या होता है कि समुद्र के आसपास का जो तापमान होता है वह हमेशा एक जैसा बने रहने में मदद पाता है। Usage of convection currents in our lives. In our daily lives, we apply the principle of convection currents. That is the hot fluid rising upward and cold fluid sinking downward to a number of situations. अर्थात कई बार क्या होता है कि जो गर्म द्रव होते हैं वह ऊपर की ओर उठते हैं और ठंडे द्रव नीचे की ओर जाते हैं और इस तरह के कई परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलते रहते हैं। एज एयर कूलर एंड एयर कंडीशनर्स आर फिटेड एट हायर पोजीशन ऑन द वॉल्स ऑफ ऑफिसेज एंड होम्स सो दैट द कोल्ड एयर generated by them moves downward and be more effective in cooling the whole room quickly। क्योंकि आपको पता है कि एयर कूलर या एयर कंडीशनर कहाँ रखते हैं हम लोग? ऊंचे स्थानों पर। क्यों? क्योंकि ये ठंडी हवाओं को प्रदान करते हैं। तो ठंडी हवाएं कैसी होती हैं? भारी होती हैं। इसलिए जब हमारे कमरे की गर्म हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो उस स्थान को भरने के लिए ठंडी हवाएं नीचे की ओर
झुकती हैं। अगर आप इसका उल्टा कार्य करते हो, अगर कूलर को या एयर कंडीशनर को हम नीचे रखते हैं, वैसी स्थिति में क्या होगी, जो ठंडी हवाएं होंगी वो नीचे की तरफ आएंगी और गर्म हवाएं पुनः ऊपर चारों तरफ फैली रहेंगी, तो इससे हमारा रूम ठंडा नहीं हो पाता है। क्योंकि वहाँ एक कन्वेक्शन करंट का बनना जरूरी है और यह तभी होगा जब हम उन ठंडे एपरेटस को ऊपर की ओर फिट कर दें। आपने जैसे देखा होगा, अब रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में भी ठीक इसी तरह की घटनाएं होती हैं। नाउ द रूम हीटर्स आर प्लेस्ड एट और नियर द फ्लोर ऑफ द रूम्स। The air heated by them rises up, sets in the convection current in the room and heat up the air of the room quickly and uniformly. जबकि अगर हम हीटर की बात करें तो ठीक इसका उल्टा कार्य कराते हैं। हीटर को हम कहाँ रखते हैं? नीचे। इसलिए कि जब हमारे कमरे का एयर जो ठंडा होता है वह चारों तरफ रूम में फैला रहता है। तो हम जब हीटर को नीचे रखते हैं तो सबसे पहले हीटर क्या करता है, अपने आसपास के एयर को गर्म करता है और जब ये हवाएं गर्म होती हैं तो गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती हैं। फिर वो ऊपर जब जाती हैं तो ठंडी हवाएं उसको भरने के लिए नीचे चली जाती हैं और इस तरह से धीरे 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 करके क्या होता है कि वह पूरी कमरे की हवा गर्म हो जाती है। द फ्रीजर्स इनसाइड द refrigerator are surrounded by the cooling pipes and have the minimum temperature. Also, the freezers are always located at the top of the refrigerators so as to easily circulate the cold air downward and keep the refrigerators cold. जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर्स होते हैं उनसे क्या होता है कि वो एक कूलिंग पाइप से जुड़े होते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है और इसलिए जो ठंडा एयर होता है उसमें का वह नीचे की ओर फैलता है और आपके सामानों को ठंडा कर देता है। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू डू चेक पॉइंट 2 as well as we will read about radiation in the next video. So till then, thank you.